Hello everyone, I welcome you all in this lecture series on important topics of environment and ecology. So on January 11 and 12, the Supreme Court ordered the demolition of Maradu high-rise apartments in Kochi, Kerala. These apartments were demolished because they violated the coastal regulation zone rules. The area near the coast, they are declared as coastal regulation zone by the central government for the purpose of protecting the coastal ecology. So CRZ rules or coastal regulation zone rules, they are applied to coastal regulation zone as notified by the central government. New rules are notified in January 2019, and how these rules impact the coastal ecology, we will analyze this in the context of climate change. Then we will also discuss about the blue flag certification rules, the blue flag certificate that is granted to certain kind of beaches. So let's start with our today's agenda. In the 1960s, Silent Spring book published की गई, and this book was written by marine biologist Rachel Carson. तो इस रेचल कार्सन की बुक से एक एनवायरमेंटल कंसर्न अराइज हुई वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद बहुत सारे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनईपी एंड कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन अडॉप्ट की गई, एंड इंडिया के अंदर भी सर्टेन एक्ट्स पास किए गए। वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये समहाउ दिस इज ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंटलिज्म। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, क्योंकि एक एनवायरमेंटल कंसर्न, एक वर्ल्ड वाइड कंसर्न राइज हुई पिछले कुछ डेकेड्स में, और उसी का आउटकम था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑल ऑफ दीज लॉज आर पास्ड। सो दी कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कोस्टल एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए हैं, दे आर नोटिफाइड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। The central government, it declares the area around the coastal land as CRZ zones, and for those zones certain kind of rules are applicable. इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमको कोस्टल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और साथ साथ में जो लोकल्स हैं उनके लाइवलीहुड को सिक्योर भी करना है। तो इस टास्क को बैलेंस करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स नोटिफाई किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991 under the Environment Protection Act 1986. So these rules for coastal regulation zones, they govern the human and industrial activity near the coastline. अब देखते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन किस तरीके से डिफाइन होती है। यहाँ पे सबसे पहले दिस इज लो टाइड लाइन एंड दिस इज हाई टाइड लाइन। So low tide line and high tide line, they are defined with respect to the spring tide. तो जो भी लोवेस्ट लेवल ऑफ वाटर होगा ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग लो टाइड्स, एंड जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर होगा ड्यूरिंग द स्प्रिंग हाई टाइड्स, दैट इज द हाई टाइड लाइन एंड द लो टाइड लाइन। और जो 500 मीटर का एरिया है फ्रॉम द हाई टाइड लाइन टुवर्ड्स द लैंड, दैट एरिया इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, and the intertidal area between the low tide line and the high tide line, this is also considered as coastal regulation zone, and 12 nautical miles from low tide line, this is also coastal regulation zone. So these are basically territorial waters. From the low tide line up to 12 nautical miles are territorial waters. Low tide line and high tide line, they are demarcated by National Center for Sustainable Coastal Management. It is based in Chennai, और इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी का यूज किया जाता है, और सैटेलाइट डेटा इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है। सैटेलाइट इमेजरी डेटा फ्रॉम द रिसोर्स सेट सैटेलाइट 1 एंड 2 एंड फ्रॉम द कार्टोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स 1 एंड 2। तो उस सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन डिमार्केट होती है, और इन लाइंस के रेस्पेक्ट में कोस्टल रेगुलेशन जोन डिफाइंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स नोटिफाई करती है इन जोन्स के लिए, जिनको हम बोलते हैं CRZ rules, and they govern the industrial activity and human activity in the coastal regulation zones. So for the first time ये रूल्स नोटिफाई हुए थे 1991 के अंदर, और उसके बाद से सब्सिक्वेंटली इनको रिलैक्स किया गया है। 2001 के अंदर फिर कुछ अमेंडमेंट्स पास हुए, एंड फाइनली 2011 के अंदर नई नोटिफिकेशन रिलीज की गई विद न्यू रूल्स। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, स्टेट गवर्नमेंट्स कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि नए रूल्स जो हैं डेवलपमेंट के रास्ते में वो एक बाधा बन रहे हैं, दे हिंडर द डेवलपमेंटल प्रोसेस।
तो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शैलेश नायक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और इस कमेटी का मेन पर्पस यही था कि स्टेट्स की डिमांड को कंसिडर करे। फिर फाइनली 2018 में ड्राफ्ट सीआरजेड रूल्स पब्लिश किए गए एंड 2019 जनवरी में उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल है सीआरजेड जोन्स में। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन को सर्टेन सब जोन्स के अंदर डिवाइड किया है 2011 नोटिफिकेशन में, एंड 2019 की नोटिफिकेशन में फर्दर सब डिवीजन किया गया है सब जोन्स में कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो अभी बात करते हैं कि 2011 के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन को 4 सब जोन्स के अंदर डिवाइड किया था। इफ दिस इज लो टाइड लाइन एंड दिस इज हाई टाइड लाइन, देन कोस्टल रेगुलेशन zone 1, it consists of eco-sensitive areas plus intertidal zone। eco-sensitive areas जो भी जियोमॉर्फोलॉजिकल इंटरेस्ट के एरियाज हैं जैसे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, उन सब को रखा गया सीआरजेड 1 के अंदर, प्लस इंटरटाइडल एरियाज। सीआरजेड सेकंड के अंदर कोस्टल जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड, वो एरियाज जो डेवलप्ड हैं टू द शोर लाइन, बेसिकली जो म्यूनिसिपल एरियाज हैं, notified municipalities or municipal areas which are developed close to the shoreline, वो constitute करते हैं CRZ सेकंड को। और जो रूरल एरियाज हैं जहां रूरल पॉपुलेशन है, दे constitute the CRZ, जो भी रूरल एरियाज हैं कोस्टल जोन के अंदर वो सब CRZ 3 की कैटेगरी में आते हैं। CRZ 4 एरिया इज बिटवीन द लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल। तो जो एरिया परमानेंटली कवर्ड रहता है पानी से, वो कोस्टल जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 के अंदर आता है, सीआरजेड 4, लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में। प्लस इन केस ऑफ टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज, जैसे अगर रिवर्स को आप कंसिडर करें या फिर आप बेस, एस्चुरीज, इनको कंसिडर करें, सपोज दिस इज अ क्रीक एंड दिस इज ओशियन, then coastal regulation zone it is defined from the high tide line। 2011 की नोटिफिकेशन में ये जोन डिफाइंड थी अप टू 100 मीटर्स फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन, so this is 100 मीटर्स। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 2019 की नोटिफिकेशन में। 2019 की नोटिफिकेशन के अंदर CRZ 1 एरिया को डिवाइड किया गया है 1A एंड 1B के अंदर, और 1A के अंदर रखा गया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को, एंड 1B के अंदर इंटरटाइडल जोन को रखा गया है। फिर CRZ सेकंड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। CRZ 3 को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, CRZ 3A एंड CRZ 3B। बेसिकली रूरल एरियाज where the population density is more than 2161 per square kilometer, and 3B areas जहाँ पे population density less है 2161। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको 3A की कैटेगरी में रखा है, एंड जो लेस डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज हैं उनको 3B की कैटेगरी में रखा गया है। तो 3A वाले डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर अब नो डेवलपमेंट जोन है 50 मीटर्स एज मेजर्ड फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन, और 3B जोन के अंदर नो डेवलपमेंट जोन है 200 मीटर्स फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन। यानी कि जो लेस डेंसली पॉपुलेटेड है वहां पर नो डेवलपमेंट जोन वो 200 मीटर्स है, और मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में 50 मीटर्स की नो डेवलपमेंट जोन है। लेकिन 2011 की नोटिफिकेशन में यूनिफॉर्म 200 मीटर्स की नो डेवलपमेंट जोन थी। CRZ 4A की कैटेगरी के अंदर टेरिटोरियल वाटर को रखा गया है लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, एंड CRZ 4B कैटेगरी में रखा गया है टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज, एंड इसके अंदर 50 मीटर्स फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन फॉर दी टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज। और यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन भी अगर रूरल एरियाज किसी क्रीक के आसपास या टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज के आसपास हैं तो वहां पर भी नो डेवलपमेंट जोन 50 मीटर्स की है। तो फाइनली इस डायग्राम से देखते हैं, दिस इज 12 नॉटिकल माइल लाइन, लो टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन, एंड CRZ 1A एरियाज वो एरियाज हैं जो जियोमॉर्फोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं जैसे मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, एंड CRZ 1B एरियाज जो इंटरटाइडल जोन है that constitute CRZ 1B areas, CRZ 2 areas municipal areas developed up to the shoreline, जो notified municipalities हैं वो सब। CRZ 3 के अंदर रूरल एरियाज आते हैं और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है,
rural population density less than 2161 per square kilometer and population density more than 2161 per square kilometer. So जो more densely populated areas हैं वहाँ पर no development zone सिर्फ 50 मीटर्स की है, लेकिन sparsely populated areas के अंदर no development zone 200 मीटर्स की। और जो tidal influenced water bodies हैं उनके अंदर no development zone from the high tide line it is 50 meters and CRZ 4B areas they are defined with respect to the tidal influenced water bodies. So CRZ 1A it constitutes territorial water from the low tide line and CRZ 4B constitute, suppose this is a tidal influenced water body, it can be a pond, lake or a lagoon. Then the area between the low tide line on one side of the bank and the low tide line on the other side of the bank. So this will constitute CRZ 4B. तो फाइनली देखते हैं 2019 नोटिफिकेशन के अंदर CRZ1A जोन के अंदर जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे अब इको टूरिज्म एक्टिविटीज अलाउ कर दी गई है। अब मैंग्रोव्स के अंदर मैंग्रोव्स वॉक, ट्री हट, नेचर ट्रेल्स, these activities can be conducted. So relaxation दिया गया है to boost the ecotourism activities. Earlier it was not allowed. Second point is in the CRZ1B areas, earlier the land reclamation activities they were not allowed. But now in the 2019 notification, land reclamation activities for the purpose of making ports and for making sea links, this has been allowed. Coastal areas जो कि एक sensitive इकोलॉजिकल एरिया है वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी सो इट विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स ऑन द कोस्टल इकोलॉजी। फिर जो म्यूनिसिपल एरियाज है नियर द शोर लाइंस वहां पे फ्लोर एरिया इंडेक्स को चेंज कर दिया गया है। नाउ द रिजॉर्ट्स कैन बी बिल्ट इन द CRZ सेकंड एरियाज इन ऑर्डर टू बूस्ट टूरिज्म एक्टिविटीज। CRZ3 एरिया जो रूरल एरियाज एंड डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज, no development zone has been reduced to 50 meters. Earlier it was 200 meters. So इससे भी construction activity boost होगी rural areas में near the coast. In the CRZ4A areas, in the territorial waters, now the land reclamation activity can be done and memorials or monuments can be built in the territorial waters. Ports, harbors, roads, and facilities for discharging treated effluents they can be established in the CRZ 4A area in the water limit, territorial area limit. All these industries can be set up. And finally in the CRZ 3 areas जो rural areas थे near the coastline वहां पर traditional fishing activity by the traditional community वो regulated नहीं थी, लेकिन CRZ rules 2019 के अंदर ट्रेडिशनल फिशिंग एक्टिविटी को रेगुलेटेड एक्टिविटी की कैटेगरी में रखा गया है। सो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट दी पुअर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फिश इकोनॉमी, दे विल बी इम्पैक्टेड द मोस्ट बाय दिस चेंज ऑफ रूल्स। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए सागरमाला प्रोजेक्ट के। सागरमाला प्रोजेक्ट दिस इज द पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल एरियाज। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कॉर्पोरेट बॉडीज इन्वॉल्व हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेट प्रोजेक्ट भी है। तो इसीलिए एक डिमांड थी, एक लॉबी क्रिएट की गई थी फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स। और अभी जो हमने सारे रूल्स के रिलैक्सेशन की बात की दैट विल इम्पैक्ट द कोस्टल इकोलॉजी। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उससे लैंड का इरोजन भी इंक्रीज होगा। अब एक स्टडी है बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी the sea level is rising at the rate of 0.33 to 5.16 mm per year. So due to the climate change, the sea level is rising and the frequency and intensity of unseasonal and extreme weather events it will only increase. तो इन रूल्स की वजह से और ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल एरियाज में जाके रहने लगेगी और ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे इंक्रीज होगी। तो वी आर मेकिंग ऑल ऑफ देम वल्नरेबल, और ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को हमने वल्नरेबल कर दिया है टू द क्लाइमेट चेंज, टू द अनसीजनल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। And Central Water Commission of India it maintains the shoreline change atlas, and as per this atlas India has lost
3829 kilometer of its coastline due to the coastal erosion. अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम कोस्टल एरियाज के अंदर अनाउंस कर रहे हैं उनकी वजह से कोस्टल इरोजन, द कोस्टलाइन इरोजन, इट विल ओनली इंक्रीज। तो हमने अपनी कोस्टल इकोलॉजी को और ज़्यादा फ्रेजाइल कर दिया है and it will have long term impact on the coastal ecosystem and on the coastal community. अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। देयर इज अ डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड करता है सर्टिफिकेट फॉर सर्टेन बीचेस एंड दीज बीचेस आर टर्म्ड एट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। तो ये सर्टिफिकेट मिलता है फॉर इको टूरिज्म एक्टिविटी। और ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। एक सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बीचेस में, जैसे कि देयर शुड बी पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स, देयर शुड बी अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, solar power plant, seating facilities, CCTV, etc. And earlier the CRZ rules, they do not allow the construction of such infrastructure in the CRZ zone, in the coastal regulation zone. So Environment Ministry has now relaxed coastal regulation zone for some of the beaches so that ये infrastructure वहाँ पे build किया जा सके. And these 13 beaches, you can read the names. These 13 beaches are selected by Ministry of Environment for the Blue Flag Certification Contest. तो ये 13 beaches participate करेंगे Blue Flag Certificate लेने के लिए and infrastructure will be developed in these beaches by flouting the coastal regulation zone rules. So ultimately, due to the impact of climate change, coastal ecology वैसे ही इतनी ज़्यादा वल्नरेबल थी और इन रूल्स की वजह से वो और ज़्यादा वल्नरेबल होगी। तो दिस इज ऑल रेलिवेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इशू बेस्ड क्वेश्चंस विच आर एनालिटिकल इन नेचर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन किस तरीके से डिफाइन की गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इम्पैक्ट क्या है और उसके लिए जोन किस तरीके से डिफाइन की जाती है वो हमको समझना पड़ता है। तो रूल्स नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। CRZ rules, they are notified by central government and they are implemented by state government through their state coastal zone management authority. So this is all for today's lecture. Thank you all for watching. Please subscribe to our channel Liberation IAS